How much will it take to complete your entire master's program like MTech or MS in IIT? And what will be the stipend amount? Will the stipend stop from the next year? How much is the hostel fee? How much is the mess fee? How much is the tuition fee? We'll know all of this in this today's video. I'll take an example of 2-3 different IITs and I'll share you the overall fee structures, and I'll also calculate you that how much money you can save, how much money you can get as a stipend, and how much money you have to pay to get your master's degree from IIT. But before that, please hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel. अच्छा, तो पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड IITs है जैसे कि IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर एंड कानपुर, ये 5 IITs में फीस लगभग सेम है। इसके साथ IIT गुवाहाटी और रुड़की में भी ऑलमोस्ट सेम फीस है। अगर आप NITs को कंपेयर करोगे IIT से तो NITs का फीस ऑलमोस्ट डबल है IIT से, एंड अगर आप IIIT में जाओगे या फिर बिट्स पे जाओगे तो फीस तो भाई बहुत ही ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ IIT कानपुर इन द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021। तो शायद इस साल भी इसका फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है या फिर कुछ ऊपर नीच हो सकता है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब 50% 60% इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं आया अभी तक। तो फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट जहाँ पे यहाँ पे है कि MTech, MDes और MSR 2020 बैच के लिए आपको कितना फीस एक सेमिस्टर के लिए पे करना होगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ 42,625 एंड फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट द फीस इज लिटिल बिट हाई 62,000। आपको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो दिस द फीस फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। SC/ST के लिए फीस थोड़ा कम है एंड देन देयर इज सम अदर फीस लाइक SBRA, और ये आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग different in IIT Kanpur. But before that, PrepLadder is going to bring you a new feature that is called Treasure, and for that you don't need to pay anything. It is absolutely free. Of course, just download the PrepLadder app from the link in the description and use the Treasure from their app itself. So what Treasure is basically, Treasure is a revision tools that is designed by the GATE Dream Team. There will be some flowcharts, there will be some memory map, there will be some tables, and it made in such a way that you can remember all the things that you have already covered, because you don't need to go back to your textbook and just read all the things that you have read. There's no time left, so that's why for quick revision this is really helpful. So in that Treasure you get all the summaries of all the chapters and all the subjects that you have covered, and also you can go there and bookmark your favorite subjects or favorite topics that you want to read it again. So for quick revision in the very few days, like the 2-3 days before the GATE exam, the bookmark content will be really useful. So you can just go there and select your subjects that you want to revise. Like all the subjects are separated and you can select any of the subjects that you want to revise, and you get entire summary of the subjects and all the chapters are cleared. So why are you waiting? Just download the PrepLadder app and use this best free method for quick revision and memory recall. So this is the amount you have to pay including the tuition fee. ट्यूशन फी यहाँ पे कितना होता है? ट्यूशन फी 5,000 पर सेमिस्टर होता है, बहुत जो कि बहुत ही कम है। एंड बिकॉज यू आर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको यहाँ पे ट्यूशन मिलता है, तो ट्यूशन फी बहुत ही कम है। उसके साथ कुछ अलग इंस्टीट्यूट लेवल की फ़ीस है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट इन दिस पार्ट इज़ योर हॉस्टल फीस एंड मेस फीस, ठीक है। तो उसके लिए शायद मैं ब्रेकअप पे नहीं जाऊँगा, तो आपको पता हो गया कि कितना फीस लगेगा पर सेमिस्टर, अराउंड 42,000। एंड उसके साथ मैं 7-8 हज़ार एक सेमिस्टर के मतलब 6 मंथ के लिए मैं अगर ऐड कर दूँ तो दिस कम्स डाउन टू 50,000, क्योंकि आपको घर जाना पड़ेगा, कि आपको खाना पीना और एक्स्ट्रा चीज़ में आप खर्चा हो जाओगे, आपको बुक्स खरीदना है, आपको अदर सामान भी खरीदना है। तो इसलिए अगर मैं मान के चलूँ कि आपको 50K पर सेमिस्टर खर्चा हो गया, तो दिस इज़ द एक्सपेंस यू हैव टू पे फॉर अ सेमिस्टर, बट आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 6 इट विल कम डाउन टू 74,400, ठीक है। तो आपको ये आपके हाथ में मिलेगा, दिस इज द इन हैंड, एंड ये आपके पास आपको एक्सपेंस हो जाएगा। सो अराउंड यू विल सेव 24,400 पर सेमिस्टर, ठीक है। तो एक सेमिस्टर में आपको अराउंड 24,000 सेविंग होगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितना एक्सपेंसेस अलग लेवल की हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन फी इन IIT मद्रास। तो मैं आपको ये दो दिखाऊंगा कि IIT कानपुर में कितना है, IIT मद्रास में कितना है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि IIT में आपको कितना फीस लगेगा। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ IIT मद्रास। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे एक वन टाइम पेमेंट होता है, सो दिस द फीस आपको पे करना है एडमिशन के दौरान।
तो यहाँ पे कुछ वन टाइम पेमेंट होता है, जैसे 3750 यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट देना है। तो मैं इसको इग्नोर करके आपको बताता हूँ। सेमिस्टर फीस आपको ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, मेडिकल फ़ीस, सीट रेंट, ऐसे बहुत सारी फ़ीस मिला के आपको देना पड़ेगा 13,300। दिस इज़ द सेमिस्टर फ़ी। इसके साथ होता है, दैट इज़ द मेन कंपोनेंट, आपकी हॉस्टल एंड मेस फ़ी, एंड दैट इज़ द ह्यूज अमाउंट दैट फर्स्ट सेमिस्टर के लिए आपको देना पड़ेगा 31,034 रुपीज़। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट सेमिस्टर पे थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज़ अराउंड 26K, 28K एंड 26K अगेन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हॉस्टल एंड मेस फी। तो अगर इसको हम मिला लेंगे तो अराउंड इट विल कॉस्ट यू 44K। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल फी स्ट्रक्चर। अगर आप IIT बॉम्बे देखोगे, IIT खड़गपुर देखोगे, आपको सेम फी स्ट्रक्चर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एज आई ऑलरेडी सेड, आपको सेमिस्टर में 44K पड़ेगा। इसके साथ कुछ एक्सपेंसेस मिला के, क्योंकि 6 महीने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसेस भी होगा, आपको खाना पीना करना होगा, घर जाना होगा, तो इसको मिला के अगेन मैं बता सकता हूँ कि आपको 50K अराउंड यहाँ पे भी लगेगा। सो दैट इज द इंडिकेशन। आप कोई भी अगर ओल्ड IIT में जाओगे तो आपको अराउंड 50K पर सेमिस्टर फीस लगेगा। हम लोग के टाइम फीस बहुत ही कम थे। हम लोग के फर्स्ट सेमिस्टर में शायद 30,000 देना पड़ा, उसके सब्सिक्वेंट सेमिस्टर में हम लोग का 23,000, 22,000 ऐसे कुछ रेंज पे देना पड़ा। बट डोंट वरी, यू विल गेट द स्टाइपेंड ऑन योर हैंड। आपको 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। बट द रूमर्स आर, मतलब एक टाइम पे ऐसे हुआ था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि स्टाइपेंड बंद कर देंगे, बट उसके बाद बहुत सारे चीज़ हुआ था। उसके बाद दे केम अप विद द डिसीजन दैट फीस हम इंक्रीज कर देंगे, लेकिन स्टाइपेंड अभी कंटिन्यू होगा। बट कितना दिन कंटिन्यू होगा उन्होंने शायद वो नहीं बताया। सो होप फॉर द बेस्ट। आपको शायद, आप अगर इस साल में एडमिशन लोगे तो आपको शायद 2 साल के लिए स्टाइपेंड डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट स्टाइपेंड आपको मिलेगा फॉर 22 मंथ्स। ठीक है, नॉट 24 मंथ्स, आपको 22 मंथ्स के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। तो यू हैव टू मेक इट इनटू कंसिडरेशन कि आपको कितना हाथ में आ रहा है, कितना इन हैंड आपको मिल रहा है पूरा IIT में 2 साल के लिए, एंड आपको कितना एक्सपेंसेस भी हो रहा है। तो अगर हम 50K पर सेमिस्टर मान के चले, यहाँ पे 2 समर ब्रेक होते हैं एंड 4 सेमिस्टर आपको होता है फॉर MTech कोर्सेज। ठीक है, सेमिस्टर आपको यहाँ पे 4 महीने के लिए होता है एंड 2 समर ब्रेक 2-2 मंथ के लिए होता है। ठीक है, तो समर ब्रेक में उतना खर्चा नहीं होता है। तो हम अगर 50K मान के चले तो आपको 1 साल में 1 लाख होगा एंड 2 साल में आपको 2 लाख, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख आपको एक्सपेंसेस होगा फॉर द एंटायर MTech और MS कोर्स। MS के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि MS के लिए 1 सेमिस्टर या फिर 2 सेमिस्टर ज़्यादा रहना पड़ेगा। बट MS का स्टाइपेंड भी 22 मंथ्स के लिए मिलता है। बट जनरली IIT में अगर आप जाओगे, आपकी गाइड के साथ बात करोगे, उनकी कुछ प्रोजेक्ट है, उनके कुछ अदर काम भी है, तो उसमें अगर आप घुस जाओगे तो आपके थोड़ा बहुत स्टाइपेंड बढ़ भी सकता है। मेरा और एक वीडियो है कि कैसे आपको 12,400 से भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब अराउंड 20,000 स्टाइपेंड मिल सकते हैं। आप इस वीडियो से एक बार देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में बात किया कैसे आपको स्टाइपेंड इंक्रीज हो सकता है। बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।